اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، جو
پوچھا ہے تم نے کہ کیا نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. جو پوچھا ہے تم نے کہ کیا نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ ہر سو چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں مجھے تھامنا، گر رہا ہوں مجھے تھامنا. ناظرین آج کچھ ایموشنل بھی ہوں، آج کچھ خوش بھی ہوں، آج کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں چلا باتوں باتوں میں کب دوسرا عشرہ آ گیا. ہم اتنے آگے بڑھ گئے جہاں ہم نے رمضان کی ہر ایک لمحے کو پوری شدت سے ہم نے محسوس کیا. وہیں ایک دکھ بھی دل میں کہیں کہیں ڈنگ مار رہا ہے کہ یہ رمضان جس کو ہم کل تک جو ہے ہاتھ پھیلا کر اس کا استقبال کر رہے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ کرتے ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. ایک بار پھر سے ہم رمضان کے اختتامی پڑاؤ کی طرف شاید بڑھنے لگے ہیں، اور اس سے دلوں میں جو ایک ولولہ ہے اس میں کمی تو ہرگز نہیں ہوئی، مگر پھر بھی ایک چھوٹا سا تو دکھ بنتا ہے کہ اے رمضان تو ہم سے اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے، اتنی جلدی دوسرا عشرہ کیوں آ گیا کا. اور ابھی بھی ایسے ہی لگتا ہے مہوش کہ جیسے وہ پہلا دن، وہ پہلی شام جب ہم پوری جوش کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر تھے، آج بھی کچھ ایسے ہی مناظر ہیں، ایسا ہی لگ رہا ہے. کیوں مہوش آپ کو بھی کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو ریڈ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن حسن رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. اور جہاں زیب نے جو باتیں کہی، کوئی شک نہیں کہ ہم اتنے پرجوش تھے، اتنے پرجوش طریقے سے ہم نے رمضان کا استقبال کیا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ عشرہ رحمت کے بعد کس طرح دوسرا عشرہ تک ہم پہنچ گئے. اور یہ ایسا دوسرا عشرہ ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں اپنے بارے میں، اپنے گناہوں کے بارے میں، تو ہم لرز اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنے بدکار ہیں، اتنے گنہگار ہیں، لیکن وہ اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ رحم کرنے والی ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ دوسرا عشرہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت انعام لے کے آئے کہ ہم ایک گنہگار، وہ لوگ گنہگار ہیں ہم کہ جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. یہ رمضان مبارک پتہ نہیں چل رہا ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا دوسرے عشرے تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اور ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے اور گناہ ہمارے بہت زیادہ ہیں. تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ پاک بہت رحیم ہے، کریم ہے. گڑ گڑا کے معافی مانگے. جس طرح ایک بچہ اپنی بات منوانے کے لیے روتا ہے، اب رونا شروع کر دیتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک کے آگے آپ بھی روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیں، ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو یاد رکھیں، کیونکہ ہم خود بھی گنہگار ہیں، بہت زیادہ گنہگار ہیں. لیکن کوشش کی ہے کہ اس ماہ رمضان میں، خوبصورت مہینے میں جتنا ہو سکے، جتنی اچھی باتیں ہو سکے آپ تک پہنچا سکے. ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن کوشش کر رہے ہیں ہم بھی جانیں اور آپ لوگوں تک بھی نالج ڈیلیور کر سکے. کیوں جازے؟ جی بالکل مہوش، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور جس طرح یہ دوسرا عشرہ آیا ہے، ہم
उन जज्बात में कमी नहीं आई, उन इबादत में कमी नहीं आई, मगर एक चीज़ जो अभी भी दिल को कहीं तकलीफ़ दे रही है कि कहीं ये अशरा भी ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम दोबारा से अपनी पुरानी ज़िंदगियों में आ जाएंगे। तो खुदारा ऐसा ना हो कि हम फिर भूल जाएं कि ये रहमतों का महीना था, इसमें रहमतें बरस रही थी और हम सो रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रब हमसे मुंह फेर ले कि जब तुझे मैं बंदे दे रहा था तब तू सो रहा था। सोना नहीं है, इस महीने हमने जागना है और कोशिश करनी है कि इस रिवायत को 12 महीने चलाना है और 12 महीने हमने इसी तरह ही रहना है। इसी के साथ साथ हम अपने पैनलिस्ट मेहमान जो हैं उनकी जानिब चलेंगे। बिल्कुल जाज़ेब, हम बढ़ेंगे मेहमानों की जानिब, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि चूँकि अभी ब्रेक का भी वक्त हुआ जा रहा है तो हमारे नाजरीन भी थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा थोड़ा सा मतलब उसमें डिफरेंट ये है कि सारे जो हमारे गेस्ट हैं वो काम करने वाले हैं, यानी कि अपने रोज़े के साथ साथ वो फील्ड में काम भी कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं और हमारी कुछ ख़वातीन भी हैं। तो उनका रोज़ा कैसा जा रहा होगा, क्योंकि जो हमारे चारों के चारों गेस्ट हैं वो अपने अपने काम में महारत रखते हैं, लेकिन घर में वो नहीं बैठते रोजा रख के। तो इसलिए हमारे नाज़रीन को चाहिए थोड़ा सा वो इंतजार करें। हाँ बिल्कुल, अपने मेहमानों से ज़रूर मिलवाएंगे। तो हुस्न रमज़ान में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ब्रेक से बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जैसा कि हम बता रहे थे कि हमारे बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े ही मोहतरम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो आज हमारी इस महफ़िल में जान डालेंगे और उनमें उनका तारुफ़ आपको मैं करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरियम कुरैशी साहिबा, और मरियम कुरैशी साहिबा के बारे में मैं आपको ये बता दूं, ये CEO हैं एक्सप्लोर पाकिस्तान की। और एक्सप्लोर पाकिस्तान क्या करता है, ये लोकल टूरिज़्म को सपोर्ट करता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी विज़न है कि पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन जो नॉर्थन एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए और उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। वो विज़न लेकर, प्राइम मिनिस्टर का विज़न लेके, पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट का विज़न लेकर जो मरियम कुरैशी साहिबा है वो अपना काम कर रही हैं। मरियम कुरैशी साहिबा का शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी है मरियम? ठीक है, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उन्हीं के साथ हमारे एक बहुत ही मोहतरम गेस्ट मौजूद हैं जो कि यकीनन अल्फाजों का ज़ख़ीरा रखते हैं, जिनका काम दिन भर अल्फाजों के साथ खेलना जो है वो जादूगरी है और उस जादूगरी से वो क्या कुछ नहीं कर लेते। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ राजा फ़खर साहब की, जो कि एक एडवोकेट हैं। राज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। जी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया जी। और कुछ और मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका भी तारुफ करवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिका हमारे साथ हैं जी, नीलम शहज़ादी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक आप सबको भी और सब देखने सुनने वालों को भी रमज़ान करीम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है आप बिजनेसमैन हैं मोहम्मद सलमान इरफानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, आप सबको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जाज़ेब अपनी बातों का आगाज़ मरियम से करते हैं। बिल्कुल, हम मरियम से करेंगे। मरियम एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं पाकिस्तान में जो टूरिज्म है उनको प्रमोट कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर का, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर का एक खास विजन है और ख़ास कंसर्न है पाकिस्तान में टूरिज्म को लेकर। और यकीनन महविश, जब मैं छोटा हुआ करता था और मैं नॉर्थन एरियाज़ में कभी जाया करता था तो मैं देखता था कि क्या हमारा मुल्क किसी स्विट्ज़रलैंड से कम है, क्या हमारा मुल्क किसी फ्रांस से कम है? बिल्कुल क्या हमारा मुल्क किसी, हमारे मुल्क में तो ऐसी ऐसी शराएं हैं, ऐसी ऐसे बागात हैं, ऐसे ऐसे मकामात हैं, ऐसे ऐसे आबशार हैं कि जिन्हें देखने के लिए शायद लोग दूर दूर से आएँ। तो क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। और वही विजन फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लोकल टूरिज्म के हवाले से किया और जिसके लिए इस वक्त मरियम कुरैशी साहिबा अपने काम को लेके चल रही हैं। तो मरियम, आपसे पूछेंगे कैसे ख्याल आया इस टूरिज्म की तरफ आने का?
मुझे खुद एक नेचर पसंद है, ब्यूटी पसंद है, इसलिए मुझे खुद घूमने का भी बहुत शौक है। तो मैंने सोचा पहले मैं खुद घूमती हूँ और अपने साथ लोगों को भी घुमाते हैं। शौक को आपने कारोबार अपना काम बना दिया, अपने ही शौक को अपना बिजनेस बना लिया, उसी में आपने एक्सेल किया। तो क्या आपको कोई चैलेंजेस फील हुई कि लोग स्वाद की तरफ नहीं जाते, डरते हैं कि जी टेररिज्म का खतरा होगा वगैरह वगैरह, कुछ इस किस्म के चैलेंजेस आपको फेस? नहीं, अभी तो नहीं। मैं तकरीबन 3-4 साल से काम कर रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पूरे पाकिस्तान से। लोग घूमना चाह रहे हैं। चूँकि ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है एक फ़ीमेल के लिए, तो मरियम उस हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि मेल हज़रात भी इसमें होते हैं, वो जिनको आप जानती नहीं होती, तो उस मामले में आपको कुछ मुश्किलात आई? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव लोग मिले और कभी ऐसा कोई मसला परेशानी कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। लकी गर्ल जो 3-4 साल से इस फील्ड में है और कोई मुश्किलात नहीं आई है। तो क्या हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगी कि कौन से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जिनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है और वो इस ईद के फ़ौरन बाद जो है वहाँ पर जाएं और आप ही के तवस्सुल से जाएं? ईद के बाद तो खैर हमारा सीज़न स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे ठंड भी है। गिलगित, हुंज़ा, स्कर्दू, मैं तो वैसे प्रेफर करती हूँ स्कर्दू जाने को, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत मरियम की फेवरेट जगह है क्योंकि वो मुझे खुद भी बहुत पसंद है। कुमराट वैली है और टेम्परेचर काफ़ी डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे ठंड है, तो इस वजह से तो ईद के बाद इंशाल्लाह कोई फैक्टर तो होगा ना, आप शारे होंगी, नेचर है, हाँ जी, ब्यूटी है और फ्रेश फ्रूट है, सबसे बढ़ के सब कुछ है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो जहाँ हमने नेचर को देखा, जहाँ हमने देखा कि एक्सप्लोरेशन हो रही है, जहाँ हमने देखा कि पाकिस्तान के लोग जॉक द जॉक जो है पाकिस्तान में टूरिज़म को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जॉक द जॉक एक काफ़िले की सूरत में अदालतों के अंदर भी खड़े होते हैं। अब ये एक मामला मुझे समझ नहीं आता क्यों हमारी अदालतों में इतने लोग शामिल होते हैं। उसके लिए हाल लेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त राजा फ़खर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप, और ये बताइएगा कि क्यों हमारी अदालतों में आजकल इतना रश होता है? सर मैं तो बेसिकली यही कहता हूँ कि कोरोना की सूरत हाल को देखा जाए तो ये बिल्कुल इसको क्लोज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी सूरत हाल ज़्यादा दिन ब दिन कोरोना जो है ना फैलता ही जा रहा है। तो अदालतों के हालात देखें, मंडी के हालात देखें, फ्रूट मंडी के हालात देखें, रमज़ान में आप कहीं भी चले जाएं ऐसी रश है, तो हर जगह ये रश को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है जब तक फुल लॉकडाउन या ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर देखिए फुल लॉकडाउन भी कर दिया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे तबके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिसके रह जाएंगे। ऐसे ही है बिल्कुल, मगर ये है कि अगर कोरोना को भी देखा जाए तो फिर भी हाँ ये भी कहते हैं जान है तो जान हाँ है। बिल्कुल, जिंदगी होगी तो आगे चल पाएंगे, अगर जान ही नहीं रहेगी तो आगे सर्वाइव कैसे करेंगे। और लोगों के मसले मसाइल इतने हैं कि अदालतों का रश कम नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अदालतें ऐसी हैं कि इसमें मतलब रमज़ान मुबारक में भी इसमें रश बढ़ा होता है, अदर जगहों पे फिर भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये इनके आपके केसेस के कुछ टाइम होते हैं और दिन के टाइम आई थिंक ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, रमज़ान में ऐसा है कि जजेस और जो वकील हैं वो थोड़ा सा रमज़ान में टाइम कम थोड़ा सा मतलब रिलीफ दे देते हैं रमज़ान में ना, जजेस टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट करते हैं और रिलीफ ज़्यादा जो है ना लोगों को, जो क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग है थोड़ा सा लोगों को रिलीफ देते हैं। मगर रश के हवाले से कहें तो रश तो ईद पे भी कचहरी खुली होती है, इतवार को भी खुली होती है, इतना काम कचहरी ऑफ नहीं होती है, मतलब डॉक्टर्स और वकला हज़रात बिल्कुल ऐसे ही है, इनकी छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है। इतना आप काम करते हैं मगर फिर भी लोगों की शिकायत रहती है अदालतों से और वकला से, ये क्या माजरा है? बस सर कुछ सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो है, सिस्टम भी जो अदालतों का निज़ाम है। अब एक जैसे इस्लामाबाद में 10 जजेज़ हैं, अब 10 जजेज़ केस हैंडल कर सकते हैं 1000 फॉर एग्जांपल, तो अब उन पे जो लोड है वो 2000 केसेस उन पे डबल ऑफ द हाँ डबल, और वो फिर उसी तरह से मैनेज करेंगे। इसी तरह दिन ब दिन जो 1000 जल्दी सॉल्व होता है, जब डबल होगा तो फिर वो केस सॉल्व में थोड़ा सा स्लो टाइम मज़ीद बढ़ता जाएगा। और बस लोगों की शिकायतें, लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि वो लोड कितना ज़्यादा है। और अब मेरे फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ,
میرا کیس ہے تو میں اپنے کیس کو دیکھوں گا کہ پوری اس کچہری میں میرا ہی کیس لگا ہوا ہے. میرا کیس ہوگا. اب میرا ہی کیس ہی ختم ہو جتنا جلدی ہو, میرا ہی کیس لگا ہوا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ کے کئی ہزار لوگ اور بھی آئیں گے. بالکل رائل صاحب, آپ بہت ایک ٹھیک بات ہے, کہتے ہیں بیسٹ پوائنٹ جہاں زیب انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ رمضان مبارک بھی ایک ایسا مہینہ جو ہمیں احساس دلاتا ہے. احساس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے, اور 11 مہینے اب اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں, 11 مہینے اپنی مرضی سے چلتے ہیں, تو یہ ایک مہینہ اگر ہم اللہ پاک کی مرضی سے گزار لیں اور وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوگا, اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ رکھا ہوا, بے شمار فوائد ہیں. اگر ہم گننا شروع کریں گے تو شاید زندگی ختم ہو سکتی ہے, لیکن فوائد ختم نہیں ہوں گے. تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنی جھولیاں بھر لیں, احساس کریں, دوسروں کے کام آئیں تاکہ آپ کی زندگی آسان بن سکے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن وقت ہوئے بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے بہترین اور معزز ترین جو مہمان ہیں وہ بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے تھے. ایڈوکیٹ صاحب سے ہم نے بہت کچھ نیا سیکھا, بہت کچھ نیا جانا, بہت سی نئی نئی باتیں ہم نے دیکھی, اور اب ہم ایک دفعہ پھر سے, ہمارے کان ترس رہے ہیں اس وقت, ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر سے سرور جو ہے وہ ہمارے کانوں میں آئے, اور اس کے لیے ہم نیلم شہزادی صاحبہ کے پاس جانا پسند کریں گے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا فیضیاب کریں. جی بسم اللہ کیجیے. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گی, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گی, کرنے روضے کا دیدار میں مدینے جاؤں گی, کرنے روضے کا دیدار میں مدینے جاؤں گی. شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار, دیکھو کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار, دیکھو کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار. میں تو کب سے ہوں تیار, میں تو کب سے ہوں تیار, میں مدینے جاؤں گی, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گی, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گی. اور دیکھا نہیں در ان کا اب تک کیا ہوگا انجام, دیکھا نہیں در ان کا اب تک کیا ہوگا انجام. میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام, میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام, کہ مرنے سے پہلے ایک بار, مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گی, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گی, سبحان اللہ. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گی. اور دیکھ کے مجھ آسی کو ان کو آ جائے گا پیار,
क्या बात। देख के मुझ आसी को उनको आ जाएगा प्यार, नूरानी चादर में छुपा लेंगे मुझको सरकार, नूरानी चादर में छुपा लेंगे मुझको सरकार, लेके जब अश्कों के बहुत खूब। लेके जब अश्कों के हार मैं मदीने जाऊंगी, क्या बात। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, करने रोज़े का दीदार, करने रोज़े का दीदार, करने रोज़े का दीदार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। इंशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी सलमान साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं, चूँकि आप बिज़नेसमैन हैं और रमज़ान मुबारक की अगर बात की जाए, दूसरा आशा स्टार्ट है, तो आप अपने कारोबार को कैसे मैनेज कर रहे हैं? 7 रोज़ा कारोबार, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। असल में रमज़ान मुबारक तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक बहुत ही बरकतों वाला महीना है, और मुसलमान का एक ईमान होता है। तो ये है कि रोज़ा तो कुछ भी नहीं कहता, जो बिजनेसमैन बंदा होता है वो अपने कारोबार की तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हम देखते हैं, कहते हैं हम बहुत सारे कारोबार करते हैं, बहुत सारे काम संभालते हैं, तो रोज़ा नहीं रखा जाता। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन वही बात मैं अगेन वही करना चाहूँगा ईमान की। जिसका ईमान होता है उसको रोज़ा कुछ भी नहीं कहेगा, तो वो अपने बिज़नेस को भी फोकस करेगा, रोज़मर्रा की मसरूफियात जो उसकी है उनको भी देखभाल जो भी वो उस तरीके से मैनेज करेगा। तो रोज़े में तो बल्कि काम करते हुए मुझे तो मज़ा आता है रोज़ा। अच्छा, आप चूँकि कपल भी हैं माशाल्लाह से, तो सहरी में आप इनकी हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे हेल्प करनी पड़ती है ज़रूर करता हूँ। और इफ्तारी में? जी इफ्तारी में करता हूँ। क्या हेल्प करते हैं? ये इन पे इनकी चेहरे पे खास स्माइल आई है, वो स्माइल का राज क्या है ये हम जानना चाहेंगे। वो ये है कि इनका जब मूड होता है ना, जस्ट ये तब कुकिंग। अच्छा, जब मूड होता है। अच्छा, लेकिन ये हेल्प जो है वो काफी हद तक करवाते हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड है। अच्छा, ये आपने कवर किया फिर। हाँ, ये कवर किया, बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर किया। बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, वो तो सभी अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे नात ख़्वानी में पहले तो मेरी मदर की, मेरी फैमिली की सपोर्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ससुराल भी ऐसा मिला और मुझे मेरे हस्बैंड भी ऐसे मिले कि वो मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं। क्या बात, खूबसूरत बात, बहुत प्यारी बात, साथ लेकर चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। हर बेटी को ऐसे ही हस्बैंड मिले जो उसका साथ दे, सपोर्ट करे। अच्छा, मुझे ये बताएं नीलम कि आपको कितना अरसा हो गया इस नात ख़्वानी फील्ड के अंदर? मैं जब छोटी सी थी, छोटी सी, कितनी छोटी सी थी? तकरीबन मैं 6-7 साल की होंगी जब से मैं पढ़ती थी। हाँ। तब इतना मोबाइल फोन कभी मतलब नहीं था, इतना ट्रेंड। टीवी में कोई नात लगी तो मुझे मामा ने कहना कि ये नात देखो कितनी अच्छी चल रही है। तो मेरी मदर को बड़ा शौक था कि मैं नात पढ़ूं, महफिल, हुजूर की महफिल सजाऊं। तो बस इसी तरह से मुझे ऐसी फील्ड मिली। मेरा घराना नात ख्वान है, मेरा ससुराल नात ख्वान, तो ऐसी फील्ड मिली कि मुझे भी शौक था। तो फिर हस्बैंड क्यों नहीं नात जो है उसमें कुछ आप कुछ सुनाते हमें? नात के हवाले से मैं यही बात करूँगा कि नात का जो अगर आप मायने देखें तो उसका मतलब यही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। बिल्कुल, बेशक। मेरे ख्याल में ये तो आपके जितने भी उम्मती है वो सब पे लाजम भी है, और मैं कहूँगा कि फ़र्ज भी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। तो एक फील्ड जो होती है नात ख्वानी की, वो तो इनकी फील्ड है। एग्जैक्टली, ये बात है। तो हम भी हर कोई 1-2 शेर पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो कहते हैं जिसका काम है उसी को सांझे। तो ये बात बिल्कुल बजा के ही बनिस्बत ये कि हमको गलती कर बैठे या कुछ गलत अल्फाज कह दे, तो ये बात वाकई है। हाँ, दिल ही दिल में कभी कभार हम पढ़ लेते हैं, कहीं अपनी मस्ती में लगे हुए हों, लेकिन प्रॉपरली करना है। एक बात है, सॉरी मैंने आपकी बात कि मुझे गाइड बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा, पढ़ते नहीं है लेकिन गाइड करते हैं। कहीं पे भी पढ़ना तो मैं कहती हूँ आपको ये सब इतना सब कैसे ये अच्छे हस्बैंड होने के निशान, सपोर्टिव हस्बैंड होने की निशानी है, जो सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेटिव सपोर्टिव हस्बैंड। और ये भी एक नेमत है, तमाम नेमतों के साथ साथ ये भी एक नेमत है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए और आपकी ज़िंदगी खुशगवार कर दे। एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, और आप बड़े माशाल्लाह एक खूबसूरत कपल है। बिल्कुल जी। और हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, जो हमारी बहनें देख रही हैं, वो इस
मुबारक महीने में अपने लिए दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें कि इसी तरह उनको एक अच्छी फैमिली मिले, एक अच्छा ख़ानदान उनको मिले, क्योंकि माँ बाप के घर तो हम बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े लाडों से रहते हैं, लेकिन आपकी जो असल ज़िंदगी है वो आपके ससुराल जाने के बाद ही शुरू होती है। तो बहुत कुछ हमें अपने माँ बाप के घर से सीखना होता है, लेकिन जो आपने सीखा होता है बाज़ दफ़ा जो माँ बाप के घर से सीख के निकलते हैं वो आगे आपके किसी काम नहीं आता, क्योंकि आपको ससुरालियों का जो बिहेवियर है वो अडॉप्ट करना पड़ जाता है। तो इसलिए इस मुबारक महीने में अपने लिए दुआ करें, अपनी जितनी भी आपकी दोस्तें हैं, बहनें हैं, जितनी भी बहनें, उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें, हम सबको भी। तो मरियम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, चूँकि जाज़ेब ने आपकी फ़ील्ड के बारे में तो बहुत कुछ बात की, रमज़ान के हवाले से अगर बात की जाए तो रमज़ान में आपके टूर चलते हैं या स्टॉप हो जाते हैं? वैसे तो नहीं होते, लेकिन इस साल हमारा प्लान है कि हम सहरी इफ्तारी का अरेंजमेंट करें, और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी हैं कि ज़बरदस्त। अगर इफ्तारी का आपका हुआ तो हम इंटरेस्टेड होंगे आपके टूर के साथ शो करने के लिए इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि एक बड़ी वो खूबसूरत सा एनवायरनमेंट बन जाता है ना कि आप आउटडोर जाके, और ट्रांसमिशन भी आप आउटडोर देखेंगे। मरियम के साथ मैंने एक शो किया था, मॉर्निंग शो, इसका ट्रिप गया था, मॉर्निंग शो मैंने किया था, बहुत मज़ा आया था, बड़ा इंजॉय किया था। इसलिए मैंने कहा कि अगर, क्योंकि हमारी चूंकि इफ्तार ट्रांसमिशन चल रही है, तो मरियम ने अगर इफ्तारी का प्लान किया तो हम इसके साथ चले जाएंगे। को हम दोबारा वापस जिंदगी में लेके आते हैं और दोबारा से उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो फिर आपने बड़ा अच्छा हमें एक ऑप्शन दे दिया। बिल्कुल, मैं मरियम की इस बातों को ना बड़े पॉइंट करती रहती हूँ, कोई मुझे ऑप्शन मिले और फ़ौरन से मैं उसको कैप्चर कर लूँ। अच्छा मरियम, रमज़ान आपका कैसा गुजर रहा है? काम चल रहा है या स्टॉप है या बाकी कोई एक्टिविटीज़? अभी तक तो है ऐसा जितना नहीं है। ईद के बाद सेकंड डे से हमारा काम फिर ऑनवर्ड 3-4 माह चलता रहेगा। यानी रमज़ान आप सुकून से गुजारी? हाँ जी। घर पे सहरी इफ्तारी कौन बना रहा है? खुद ही बना लेती हूँ। खुद ही बना रहे कितने मासूम हैं, खुद ही बना रहे। मुझे पसंद भी बहुत है कुकिंग, और मैं हर रोज़ नई से नई डिश ट्राई करती रहती हूँ। वैसे ऑनेस्टली मुझे लगता था मरियम कुकिंग नहीं करती लेकिन ये नहीं, मैं ऑलराउंडर हूँ, मुझे सारे काम आते हैं, शौक से करती हूँ। पे कब बुला रही हैं? इंशाल्लाह जब भी आप आए, जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा हम नहीं मैं आप तो मरियम, आप जो इतना बड़ा काम लेके चल रही हैं, तो आपके पास कोई टीम भी होगी, कोई ह्यूमन रिसोर्स भी होगा आपके पास? जी, हमारी प्रॉपर टीम है और पूरे पाकिस्तान से हम मतलब टीम मेंबर हैं, और इन केस अगर मैं नहीं जा सकती तो मेरे बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो सारा अपना काम कर रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छा नेटवर्क चल रहा है माशाल्लाह। और ज़्यादातर आप जो नॉर्थन एरियाज़ हैं उन्हीं को एक्सप्लोर करते हैं? ऑल ओवर पाकिस्तान, सीज़न पे डिपेंड करता है। अब कराची या गवादर उस साइड पे तो अब बहुत गर्मी है, नहीं जा सकते हम, वहाँ से लोग फिर मूव करते हैं। तो गवादर की जहाँ तक आपने बात की, गवादर हमारे लिए एक सोने की चिड़िया इस वक्त जो है अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम है पाकिस्तान के लिए। तो गवादर में भी आपके कोई एक्टिविटीज़ होती हैं इस किस्म की, ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो देख सके, वो जान सके? हाँ जी, हम लोग जाते हैं, लेकिन सर्दियों में और गर्मियों में हमारा जो होता है ये KPK हम लोगों ने और गिलगित वगैरह वो एक्सप्लोर करना होता है। पूरा पाकिस्तान मरियम तो देख चुकी है, अब हमारा देखना बाकी है। दिखाऊंगी इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मरियम के साथ हम भी देख सकें। मरियम, जाने से पहले हमारे नाज़रीन के लिए खूबसूरत सा मैसेज ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बहुत प्यारा बनाया है, तो कोशिश करें कि मतलब टाइम निकाल के इस चीज़ों को एक्सप्लोर करें। बहुत चीज़ें हैं पाकिस्तान में, और मुझे लगता है कि हमें बहुत से लोग हैं जो टाइम नहीं निकाल सकते अपनी बिज़ी रूटीन से, या वो प्रेफर ही नहीं करते, ट्रैवल है ये वो। मैं कहती हूँ कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, तो उसे ज़रूर देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए और सीखना चाहिए। बहुत ट्रैवल से तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और नई से नई चीज़ें, नए से नए लोग, एरिया, और मतलब हमें विज़िट करना चाहिए, हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और अपने ज़हनी सुकून के लिए टाइम निकालना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मेंटली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। काम तो और इन चीज़ों में तो बहुत ही सुकून है, और नेचर में तो अल्लाह ने बहुत सुकून रखा है। बिल्कुल हो गया। राजा साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपका रमज़ान चूँकि दूसरा अशरा स्टार्ट है, तो कैसा जा रहा है? एक्साइटमेंट है? क्योंकि जब रमज़ान आता है हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपने इख्तिताम की तरफ जाता है बहुत ही गमज़दा से हम हो जाते हैं। तो आपकी एक्साइटमेंट क्या है और रमज़ान कैसा जा रहा है? माशाल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है रमज़ान, मगर इस चीज़ को, ये जो एक मंथ का रमज़ान होता है, मतलब एक चीज़ को डिनाई तो नहीं कर सकते, मगर मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जितनी बरकतों वाला महीना है ना, ये रमज़ान 30 दिन का नहीं, ये 2 महीने का,
3 مہینے کا 365 جتنا زیادہ دن کا ہونا اتنی چاہیے۔ مطلب رونقیں ہیں، وہ افطاریاں اور وہ عبادتیں ہیں، مسجد میں آپ جا کے دیکھیں آگے پیچھے، تو اتنا اچھا ایٹماسفیئر دیکھنے کو رمضان میں اسپیشلی ملتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو 30 دنوں کے لیے نہیں، اس کو زیادہ دنوں کے لیے ہونا چاہیے تھا. 365 دنوں کے لیے بالکل ایسا ہی ہے وہ. بالکل. اچھا پتہ ہے ایک رمضان آتا ہے نا تو ایک ایسی عجیب سی خوشی ہوتی ہے، خوشی آ جاتی ہے اور بندہ دل کرتا ہے کہ یہ رمضان اب ختم نہ ہو. اور جب اختتام کو ہوتا ہے تو یقین کرے دل آنسو، خون کے آنسو رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اب کیوں جا رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسج؟ رمضان میں جیسے میسج رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے کہ سحری میں سارے فیملی ممبر اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ افطاری میں سارے فیملی ممبر اکٹھے ہوتے ہیں، تو میرا سب لوگوں کو میسج یہ ہے کہ ساری بیزی لائف میں سے کبھی کھانا کہاں کھاتے ہیں، کبھی کہاں کھاتے ہیں رمضان کے علاوہ. میں کہتا ہوں کہ رمضان کے علاوہ بھی وہی روٹین رکھنی چاہیے. بالکل. فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ دسترخوان پہ جیسے سحری کرتے ہیں، جیسے افطاری کرتے ہیں، ایسے ہی اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے اور کھانا کھانا یا جو بھی ان کے ساتھ، تبھی آپ اپنی فیملی سے کچھ بات کر سکتے ہیں، ان کی بات سن سکتے ہیں. ورنہ یہاں بزی لائف میں تو دنیا کے کام ہے وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. بالکل. لیکن یہ فیملی اللہ پاک کی طرف سے دی بڑی خوبصورت رحمت ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. سلمان صاحب آپ کیا میسج دیں گے ہمارے نوجوان نسل کو؟ رمضان المبارک کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے یہ برکتوں والا مہینہ اللہ کی ذات نے ہمیں عطا کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ عبادات، نوافل اور دوسروں کی مدد. اور ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد کے اوپر بات کرتے ہیں، تو حقوق العباد کے لیے لوگ نکل پڑتے ہیں باہر لوگوں کو ڈھونڈنا کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے، تو اپنی فیملی کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا خوبصورت بات، خوبصورت بات. میں سب سے پہلے آپ کی اپنی فیملی، بہت بہترین بات. ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، یہ رشتے جو ہے نا یہ بہت پیارے رشتے ہیں. بہت میں نے جو پریکٹیکل لائف میں نے خود دیکھا کہ لوگ باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہم نے اچھائی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، جبکہ گھر میں ماں کے ساتھ ہو سکتا ہو اچھائی نہ کرتا ہو، بھلائی نہ کرتا ہو، اس کا برتاؤ، اس کا رویہ اپنی فیملی کے ساتھ نہ ہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ. تو میرے خیال میں اپنی فیملی کو سب سے آگے رکھے اور پھر اس کے بعد جب آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو وہ قبول بھی ہوگا. بالکل. یہ سٹارٹ ہمیں گھر سے لینا چاہیے. بہت شکریہ سلمان. جہانزیب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، بہت خوبصورت باتیں ہمارے معزز مہمانوں نے کی. اس کے بعد تو کچھ بات رہتی نہیں ہے، جو خوبصورت باتیں ہم ان سے سنتے آ رہے تھے. مگر جہاں ہم نے بات کی مریم سے، مریم نے بتایا کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، بہت ہی گرینری ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر تم خدا سے ملنا چاہتے ہو، ویسے تو خدا سے کوئی نہیں مل سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر تم خدا سے ملنا چاہتے ہو، اگر تم رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو جنگلوں کی گہرائی میں، پہاڑوں کی اونچائی میں اور سمندر کے بیچ میں جا کے دیکھو. کیا بات، تمہیں خدا نظر آئے گا، تمہیں خدا کی قدرت نظر آئے گی. اور یہ قدرت یقیناً وہی بات ہے کہ ہمارا ملک یا ہمارا جو نیچر ہے یہ بہت خوبصورت ہے. یہ خدا کے قریب کرتی ہے، یہ خدا کے بالکل کلوز لے کے آتی ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ رمضان 30 دن کا نہیں، 365 دن کا ہونا چاہیے. ہر روز شان رمضان ہو، ہر روز جو ہے رمضان کی برکتیں ہوں، عبادت کی برکتیں ہوں اور خوشیوں کی بہار ہوں. یہ ایک 30 دن کی بات نہیں، 365 دن کا ہی عمل ہے. بالکل بالکل. بہت اچھی بات آپ نے کی جہانزیب، اور آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. نیلم آپ کا بہت شکریہ، سلمان آپ کا، فخر صاحب آپ کا بہت شکریہ، مریم آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یقیناً ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. اور جانے سے پہلے پھر یہی بات کہوں گی، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی مشکلات کو آسان کریں. آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنے لیے آپ کو آپ کی جو مشکلات ہیں ان کا حل خود بخود نکل آئے گا. اور یہ تو ایک خوبصورت سا مہینہ ہمیں ملا ہے. جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جتنا ہو سکے دوسروں کی خوشیوں کی وجہ بنے، جتنا ہو سکے بانٹنے کی کوشش کریں. بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے. ابھی دیجیے اپنی میزبان محوش چودھری کو اور جہانزیب خان کو اجازت، لیکن جانے سے پہلے نیلم سے ہم ایک اختتامی کلام ضرور سنیں گے. جی بسم اللہ کیجیے. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے
जिसके आगे सभी मशालें बुझ गई, जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।